बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਟੰਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਤਾ ਟੰਡ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਟੰਡ, रमा ਟੰਡ, प्रमोद नैयर, नंदनी नैयर, अश्विनी शर्मा, रोहित टंड, वंदना टंड, खुशी टंड ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਟੰਡ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਟੰਡ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਗਿਆਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 5 ਜੂਨ 1948 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਤਾ ਟੰਡ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ JS ਨਈਅਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਈਅਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ RP ਟੰਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਤਾ ਟੰਡ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਕਿ ਆਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਟੰਡ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਟੰਡ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ DAV ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਟੰਡ ਜੀ ਨੇ ਸਪੇਸ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ DAV ਕਾਲਜ ਮਲੋਟ, ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਟੰਡ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਤਾ ਟੰਡ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਰੋਹਿਤ ਟੰਡ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਸੈਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਟੰਡ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ 20 ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਟੰਡ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਤਾ ਟੰਡ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਟੰਡ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਤਾ ਟੰਡ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟੰਡ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। वो कितने वर्षों के बाद आता है, और शास्त्रकार ये कहते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद ये संसार जो हम देख रहे हैं या जिसमें हमने जन्म लिया, इस प्रकार संसार में कितने बार जन्म लिया इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये संसार जो है फिर अपने स्वरूप में आ जाता है, जिसको मूल प्रकृति कहा जाता है, सत्वरजतमों के रूप में, तो जिसको वैज्ञानिक लोग परमाणु भी कहते हैं। तो ये 4 अरब 32 करोड़ के बाद इसका परिवर्तन होता है और फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक ये संसार जो है उस रूप में, सूक्ष्म रूप में रहता है, जिसको हम प्रलय अवस्था भी कहते हैं। तो उस समय जो है ये आप कहेंगे कि फिर उस समय हम समाप्त हो जाते हैं। अभी तो बात हो रही थी ये जो तीन चीज़ें जो अनादि हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय भी हम रहते हैं, ऐसा नहीं है। उस समय हमारा शरीर एक स्थूल शरीर नहीं रहता, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है। वो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? सूक्ष्म शरीर ऐसा है जिसमें 19 तत्व होते हैं। सूक्ष्म शरीर में 19 तत्व होते हैं। जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, मतलब जीव जब इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है, 19 तत्वों के साथ ही चला जाता है।
इसको जैसा ये जो शरीर है इसको स्थूल शरीर कहा गया है, और जो इसके अंदर और एक शरीर होता है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आगे भी कारण शरीर भी है और एक शरीर होता है जो विशेष विशेष व्यक्तियों को मिलता है जिसको यश के शरीर कहा जाता है। जैसा मान लीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को वो शरीर मिला, अभी तक हम 9 लाख वर्ष हो गए, उनको हम अभी तक याद करते हैं, तो यश की शरीर उनका हमेशा रहेगा जब तक हमारी संसार है 432 करोड़ वर्षों तक, जब तक तब तक जो है उनका शरीर हमारे साथ रहेगा, मतलब हम उनको याद करते हैं यश की शरीर। और कारण शरीर भी होता है और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में ये जो है 19 तत्व होते हैं। 19 तत्व कैसे? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 जो है प्राण है और 5 तन मात्र, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन मात्र, ये 15 हो गए। फिर मौन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 हो गए, तो कुल मिलाकर के हो गए ये 19। ये 19 तत्वों में एक जब वैसे हम इस भौतिक शरीर को छोड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो है उस 19 तत्व के साथ बाहर निकल जाता है, मतलब जीव जो है वो बाहर निकल जाता है। और वो फिर कैसे उसको अगला शरीर कैसे मिलता है? पतंजलि ऋषि योग दर्शन के माध्यम से बताते हैं, तो उसी प्रकार से उनको शरीर मिलता है जैसा उनके पिछले कर्म होते हैं। संतोलक इसलिए कहते हैं तो ये जो वर्तमान शरीर है ना, ये वर्तमान शरीर हमें अगले शरीर के लिए, मतलब अगले जीवन के लिए मिला है। जैसे हम वर्तमान जीवन में रहते हैं, वर्तमान शरीर में रहते हो, जैसे जैसे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का जो सूक्ष्म प्रभाव होता है वो चित्त पर पड़ता है, वो चित्त पर पड़े रहते हैं तब तक जब तक उसको तो उन कर्मों का फल भुगतान नहीं होता, जब तक भोग नहीं लेता। अब जब ये शरीर जब हम छोड़ते हैं, हमारे चित्त पर पड़े जो सूक्ष्म संस्कार है उन संस्कारों के अनुसार, इसलिए पतंजलि इसलिए एक छोटा सा सूत्र दिया है, सती मूल्य तब विपाक जात्यायु होगा, जाति आयु एवं भोग, जाति आयु भोग, ये 3 चीजें जो है पिछले कर्मों के अनुसार वर्तमान मिलते हैं। और जैसे हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो साथ ही साथ है पूर्व कर्मों के अनुसार हमें जाति भी मिल जाती है और आगे चल करके भोग भी मिलते हैं और जाति आयु, और उसी प्रकार से हमें आयु मिलती है। एक बात जरूर ध्यान रखने की ध्यान है, इसमें जाति तो निश्चित है, कर्मों के अनुसार ही जाति मिल रही है। वो जाति आपकी जो है मनुष्य जाति हो सकती है, वो जाति आपको भूखे बिल्ली और किन्नी भी तक, मतलब जैसे संसार में जैसा हम कहते हैं 84 लाख देव, 84 लाख देवों में से कोई भी एक आपको मिल सकता है। लेकिन ये जो कर्मों, ये जो आयु और भोग, जैसे आकर आगे जाकर के हम कर्मों करना प्रारंभ करते हैं तो उसी के अनुसार प्लस माइनस मतलब योग और वियोग होकर के परमात्मा की व्यवस्था अनुसार हमें आयु भी आगे मिलती है और उस प्रकार से हमें भोग भी मिलती है, आयु भी मिलती है और भोग भी मिलती है। तो इसलिए वेद बार बार उपदेश देते हैं हमको, हमें जो है कर्म अच्छे कर्म करना है। और अभी जिन मंत्रों से मैंने प्रारंभ किया है, यहाँ भी कहता है ये तो इसके अंदर जो चेतन सत्ता है, इसके अंदर जो चेतन सत्ता है जिसको हम बहुत सारे नामों से बताते हैं, और ये चेतन सत्ता जो है ये सदा रहने वाली है। जैसे ये जन्म मृत्यु उसी प्रकार से, जैसे मानो नदी है, नदी के 2 किनारे जो है अवश्य बात है, ऐसा नहीं हो सकता एक किनारे वाली नदी उसमें 2 किनारे बने। उसी प्रकार जन्म और मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का मतलब ये नहीं है जीव की मृत्यु नहीं होती, मैं पहले भी आपसे बता रहा था, जीव की कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसकी मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु होती है, तो वो शरीर का जन्म होता है। जीव तो सदा एक, उसमें न छोटा होगा न बड़ा होगा, न उसकी मृत्यु होगी और न उसका जन्म होगा। न जाते देवा कदाचित नायम पुत्र भक्ता न भूया, और जो नित्य शाश्वत पुराण मानना के हम बनाने से न जाते, न उसका जन्म है न उसकी मृत्यु। फिर जन्म मृत्यु किसकी है? जन्म मृत्यु
शरीर की, शरीर मतलब समाप्त शरीर होती है और जो भूतों से बना हुआ है, इसलिए जो है इसका परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके अंदर जो चेतन सत्ता है उसका संभव नहीं है। इसलिए गीताकार ने बहुत सुंदर न जाए के लिए ना तो इसका जन्म है न तो इसके मृत्यु है, और जो तो शास्त्र पुराणों अन्यते अन्य मानस न तो इसका जन्म है न इसकी मृत्यु है। ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं था अब है आगे नहीं, ये पहले भी था अब भी है आगे भी रहेगा। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं चिंतन विशेषकारी आदि कई श्लोकों के माध्यम से गीताकार ने हमें समझाया, जो न तो इसको न वायु सुखा सकती है, न वस्त्र इसको काट सकता है, न पानी इसको गीला कर सकता है, न आग इसको जला सकती है। तो सदा जैसे हम पुराने पुराने वस्त्र को करके नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, या जब हमारा घर जलने का नुकसान होता है, जो घर हम उस घर में कब तक रहते हैं जब तक वो घर ठीक ठाक रहता है। जैसे घर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, टूट जाता है, उस घर को छोड़ करके हम नए घर में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, रहने लायक नहीं होता, तब जो है हम इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। ये व्यवस्था परमात्मा की है। और एक बात ध्यान रखिए, परमात्मा जबरदस्त नहीं ले जाता। परमात्मा किसी को जबरदस्त करके मतलब छोटी आयु में शरीर से निकाल दे या किसी को लंबी से लंबी आयु में, ऐसा परमात्मा नहीं करते, क्योंकि वो हम सबके पिता है, हम सबकी माता है, सबकी वो सबके बंधु भी है। तो इसलिए वो समान रूप से चाहते, लेकिन ये सब कुछ है हम सबके कर्म का खेल। आयु हम कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं, जाति भी हम कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं, भोग भी हम कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं। व्यवस्था परमात्मा की, और ये सब कुछ प्राप्त करना मतलब कितने मात्रा में करना है, ये सब ये हमारे कर्मों का खेल है। तो इसलिए जो है ये बार बार कहते हैं, ये देखो ये जो शरीर में मिला है, ये शरीर जो है समाप्त हो गया, भस्मांतर शरीर, ये शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम सदा रहने वाले हो, तुम सदा रहने वाले हो। तुम्हारे केवल स्थान का परिवर्तन हो रहा है बस। यहाँ जब देखो परमात्मा तो दयालु है, वो तो जानते हैं हम किस रूप में कहाँ कैसे हैं, तो इसलिए वो देखते हैं जहाँ जो है कष्ट में और जिनके मतलब शारीरिक व्यवस्था को खराब है, चाहे वो आयु के आधार पर हो चाहे वो बीमारी के आधार पर। जब शरीर कष्टदायक होता है, उन्हें रहने लायक नहीं होता, तब परमात्मा दयालु वो कृपालु है। वो मृत्यु एक ये क्यों कहा जा सकता है, एक साधन है, उसके माध्यम से ही वो चेंज कर परिवर्तन कर देते हैं, वो जो परिवर्तन कर देते हैं। और कैसे देखो आपको ज्ञान इसलिए कह रहा हूँ, देखो जिसमें हम रह नहीं पा रहे थे वो तो फिर नया हमें प्रदान कर रहे हैं। आपको अगर देखो कोई पुराना घर, आपका घर जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट गया, रह नहीं पाएगा, वो कष्ट में, तो अगर आपको कोई नया घर दे तो आपको खुशी होती है। तो इस पर जो संत लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं, वो फिर इस रूप से मतलब मृत्यु जब ये भयंकर जो कष्ट है तो इससे वो घबराते नहीं, वो जानते हैं देखो जब हमारा ये रहने का स्थान जीर्ण हो जाएगा, टूट जाएगा, तो प्रभु हमें जो है नया घर दे देंगे, तो वो उसमें भी वो दुखी नहीं होते। लेकिन हम साधारण लोग सोचते हैं देखो ये तो ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, चले गए, तो हम दुखी होते हैं। भगत के माध्यम से हम उनको श्रद्धा से बातें करते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतम्।
आज हम सभी प्रिंसिपल श्री राजपाल जी धन, पूज्य मां श्रीमती सरिता जी धन, बहुत ही व्यक्तित्व के धनी, ज्ञानी, परोपकारी, विद्यापरायण, ऐसे ज्ञान के प्रति, शास्त्रों के प्रति जिनका अपार श्रद्धा, आस्था एवं आर्य समाजों के नहीं विभिन्न संस्थाओं में, टीवी संस्थाओं में अपनी सेवाएं देते हुए, वेद की प्रचार करते हुए, इस सांसारिक यात्रा को पूर्ण करते हुए प्रभु चरण में जा विराजे। सचमुच जो प्रिंसिपल शब्द है, उस शब्द को सार्थक करते हुए परमात्मा दोनों प्रतिमूर्ति को निश्चित रूप से अपने स्थान दिए होंगे। जैसे कि सुंदर विचार सुन रहे हैं पंडित जी से, और बहुत सारी जगह पर उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं डीएवी कॉलेज के छात्र हूँ और हमारे सामने हमारे अश्विनी जी बैठे हैं। ये भी बड़े डेडिकेटेड रहे अपने समय में, उनके साथ मिलकर के काम किए हुए। बहुत सारे प्रोफेसर लोग यहाँ पर आए हैं, मैं देख रहा हूँ डीएवी कॉलेज से। तो मैं ज़्यादा कहता ना हूँ, भजन के माध्यम से उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती हुई आई। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। सीने में गगन के छेद हुई, एक और सितारा टूट गया। सीने में गगन के छेद हुई, एक और सितारा टूट गया। यह कौन गया हर आँखों में आंसू बहने लगे। यह कौन गया है महफिल से, हर आँखों में आंसू बहने लगे। सबे और उदासी फैल गया, अरमान दिलों के कहने लगे। सब और उदासी फैल गया, अरमान दिलों के कहने लगे। इसी घन परिवार की नदियों का, किसी घन परिवार की नदियों का, एक और किनारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। सीने में गगन के छेद हुए, एक और सितारा टूट गया। एक फूल सिमट कर बिखर गया, चाहूं और महक बिखरा करके। एक फूल सिमट कर बिखर गया,
चहुओर महके बिखरा करके एक दीप बुझा है जन जन को जीने की राह दिखला करके एक दीप बुझा है जन जन को जीने की राह दिखला करके जो ज्ञान के जल से पूरते था जो धर्म के ज्ञान से पूरते था वह कल से हमारा टूट गया आकाश मता क्या बातें हुई क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। नजरों ने जिसे सजते देखा अनगिनत विशाल सभाओं में नजरों ने जिसे सजते देखा अनगिनत विशाल सभाओं में हर बार नया चिंतन देता निष्णात अनेकों कलाओं में हर बार नया चिंतन देता निष्णात अनेकों कलाओं में अब नजर कहीं ना आएगा अब नजर कहीं ना आएगा नजरों का नजारा टूट गया आकाश बता क्या बातें हुई क्यों धरे तुम्हारा टूट गया सीने में गगन की छेद हुए एक और सितारा टूट गया। चलते चलते राहों पर कोई साथ अचानक छोड़ गया चलते चलते राहों पर कोई साथ अचानक छोड़ गया ऋषि दयानंद के पते का एक और पथ के दम तोड़ गया ईश्वर भक्तों के पथ का एक और पथ के दम तोड़ गया क्या हाल कहे अपने दिल का क्या हाल कहे अपने दिल का जब दिल ही बेचारा टूट गया आकाश बता क्या बातें हुई क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया सीने में गगन की छेद हुई एक और सितारा टूट गया आकाश बता क्या बातें हुई क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। सचमुच उनका जाना परिवार के लिए एक रिक्त स्थान नहीं है लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा घाटा है क्योंकि जहाँ भी वे जाते थे अपने विचारों की जो ताकत है उस ताकत को हमेशा दर्शाते थे और समाज को हमेशा हर बार एक नए चिंतन देते थे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत
कष्टकारक है परिवार के लिए भी। वो जमा ही चली गई। देखो ये भी एक संयोग है। हम साथ में जीने मरने की कसम खाते हैं, लेकिन कोई बिरला ही होते हैं जो इस प्रकार से साथ आना और साथ जाना, ये भी एक संयोग है बहुत बड़ा। तो एक भजन, समय बहुत सीमित है, एक भजन गा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम कभी माता पिता के ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतना कि हम गिना सकते हैं। आइए इस भजन को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। हम कभी माता पिता की, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं, हाँ हम गिना सकते नहीं। हम कभी माता पिता के ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं, हाँ हम गिना सकते नहीं। यहाँ कहाँ पूजा में शक्ति, यहाँ कहाँ फल जापेगा, यहाँ कहाँ पूजा में शक्ति, यहाँ कहाँ फल जापेगा। हो तो हो इनकी कृपा से खातिमा संताप का, हो तो हो इनकी कृपा से खातिमा संताप का। इनकी सेवा से बढ़े तन मन धन बने लंबी उम्र, स्वर्ग से बढ़ करे है जग में आसरा माँ बाप की। इनकी तुलना में भी कोई हो, इनकी तुलना में भी कोई वस्तु भी ला सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं, हाँ हम गिना सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन, देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन, कि हमारे सुख की खातिर तड़पते दिन और रैन, कि हमारे सुख की खातिर तड़पते दिन और रैन। भूख लगती प्यास और नींद भी आती नहीं, कष्ट हो तन पर हमारे वो उठे बेचैन नहीं। इनकी से बढ़कर भी हो, इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं,
हम गिना सकते नहीं। पढ़ लो वेद और शास्त्र का ही एक यही मर्म है। पढ़ लो वेद और शास्त्र का भी एक यही मर्म है। योग्यतम संतान का यह सबसे उत्तम कर्म है। योग्यतम संतान का यह सबसे उत्तम कर्म है। जगत में जब तक जिए सेवा करे माँ बाप की। इनके चरणों में भी यह तन मन लुटाना धर्म है। यह पथ केवल सत्य है। यह पथ केवल सत्य है, जिसको झुठला सकते नहीं। इनके तो एहसाने तेरे हम गिना सकते नहीं। हम गिना सकते नहीं। हम कभी माता पिता को ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसाने तेरे हम गिना सकते नहीं। हम गिना सकते नहीं। हम गिना सकते नहीं। आप सबकी आमद के लिए हार्दिक धन्यवाद व आभार। हर मुकाम से आगे है मुकाम तेरा। जिंदगी ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ भी नहीं। बस एक यात्रा है जीव से ब्रह्म तक, काल से अकाल तक, अंत से बेअंत तक, सृजन से विसर्जन तक। और ये यात्रा उसके हुक्म से शुरू होती है। और इस यात्रा में हमारे पास कर्मों का लेखा होता है और सांसों की पूंजी होती है। हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर किधर से गुजरता है, क्या इकट्ठा करता है, क्या लेके जाता है, क्या छोड़ के जाता है, यही सबसे अहम बात है। लेकिन एक बात पक्की है कि हर बूंद सागर होना चाहती है। शाम को सभी पंछी अपने घर लौटना चाहते हैं। इस यात्रा की वापसी निश्चित है, क्योंकि यहां पर थिर कुछ भी नहीं। कह नानक थिर कुछ नहीं, जो सपने संसार। जो आवे सो चल सी, सबकी बारी आई। आज हमारा सामना इस दुनिया के सबसे बड़े सच से है। और वो सच ये है कि इस दुनिया में थिर कुछ भी नहीं। जो उपजे सो बिनस है, आज नहीं तो काल। क्या नानक हर पच बना, झाड़ सकल जंजाल। हर कोई अपनी अपनी यात्रा में है, अपने अपने रास्ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी यात्रा में बांटते क्या हैं, इकट्ठा क्या करते हैं और साथ क्या लेके जाते हैं और क्या छोड़ के जाते हैं। हम जिनकी पावन समृद्धि में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनकी यात्रा एक शिक्षक और अध्यात्म पथ की यात्रा थी। ये यात्रा 5 जून 1948 में उस समय के विख्यात
पत्रकार साहित्यकार श्री नंदलाल एश और उनकी धर्मपत्नी आज्ञावती की गोदी से शुरू हुई। इसी शहर में 88A मॉडल हाउस से बड़ी सुंदर यात्रा थी। उन्हें नरेंद्र और सुदेश का साथ मिला और साथ ही तृप्ता, उषा, कुसुम और सुदेश का संग मिला। उन सब के साथ खेलते खेलते पिता एश जी से उन्होंने उच्च कोटि के संस्कार प्राप्त किए और 1971 में जिस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की वहीं पर ही शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। फिर ईश्वर की इतनी कृपा हुई कि एक दिन नंदलाल एश और आज्ञावती जी ने GS नैयर और संतोष नैयर बटाला से जो थे उनके साथ मिलकर श्री राजपाल जी के हाथ में सरिता जी का हाथ दे दिया और ये अटूट साथ रहा। दोनों ने एक सुंदर बगिया सजाई। उस बगिया में रोहित नाम का एक फूल खिला, बड़ा सुंदर चमन सजा और उस चमन के बागवा बन के उन्होंने रोहित को भी इस जमाने के शिखर तक पहुंचाया, जिसकी खुशबू कनेडा तक पहुंची। एक दिन सरिता जी और राजपाल जी ने रोहित का हाथ वंदना के हाथ में लिया। फिर क्या था, फिर खुशी ही खुशी थी। उनके आंगन में खुशी की कली खिली, बड़ा सुंदर चमन सजा हुआ था और राजपाल जी सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं अग्रसर हो रहे थे, उन्होंने अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में भी खूब अध्ययन किया। न जाने कितने बच्चों को सजाया संवारा, उनका जीवन आगे बढ़ाया, उनको तराशा। उनके पढ़ाए हुए न जाने कितने विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचे। यही नहीं, उन्होंने लोगों के हर सवाल के जवाब 20 सवाल में दिए और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से वो जन जन के घर में पहुंचे। आउटर स्पेस लॉ पर PhD करी पंजाब यूनिवर्सिटी से और DAV मैनेजमेंट ने उनको मलोट, जगराम और अजमेर के प्रिंसिपल की जिम्मेवारी सौंपी। लेकिन उनका अध्यात्म और ज्योतिष में विशेष लगाव था। प्रिंसिपलशिप के बाद वो उसी कार्य में आगे बढ़ने लगे और इसी कार्य में उनके छोटे भाई सुदेश और रमा ने बच्चों की मांगे की सेवा करी। लेकिन इतनी बात पक्की है, ये भी इस दुनिया की अटल सच्चाई है कि कोई भी यात्री सदैव अपने वाहन पर सवार नहीं होता। वो वाहन चाहे कोई भी हो, बेशक आत्मा पंच तत्वों के शरीर रूपी वाहन पर सवार होकर इस दुनिया की यात्री करती है, लेकिन हर यात्री को एक दिन अपने वाहन से उतरना होता है। वो वाहन चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे एरोप्लेन हो या वो पंच भौतिक शरीर ही क्यों ना हो। एक दिन ऐसा आता है कि जब आत्मा सोचती है कि मेरा पड़ाव आ गया है, मेरा सफर बस यहीं तक था। वो आत्मा कपड़े बदलना चाहती है, एक पड़ाव पर रुकना चाहती है। लेकिन यहाँ तो दो आत्माओं का मिलन था। 15 जनवरी 1974 में ये आत्माएं एक दूसरे के साथ के लिए 7 फेरे लिए थे उन्होंने, और उनका ये प्रण था, संकल्प था कि हमारी यही यात्रा नहीं बल्कि आगे की यात्रा भी अच्छी होगी। और ईश्वर ने उनका संकल्प पूरा किया और दिन भी चुना, सोमपति अमावस का दिन,
वो सोमपति अमावस जो 85 बरस बाद विशेष मुहूर्त में आए थे, वो दोनों आत्माएं इस शरीर रूपी वाहन से उस दिन उतर गई कपड़े बदलने के लिए, आगे की यात्रा के लिए। जेहा चीरी लिखिया तेहे हुक्म कमाए, कल्ले आवे नाम का सत्य ते ऊर्जाए। ये यात्रा उसके हुक्म से होती है। हुक्मे आवे, हुक्मे जावे, हुक्मे रहे समाए। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए, ए मार्ग संसार का नानक थिर नहीं हुए। ये जब चलन हार है, जो आगे सुचन से सबकी बारी आई। बेशक वो 20 सवालों में लोगों के सवालों के जवाब देते रहे, लेकिन कुछ सवाल और कुछ जवाब वो अपने साथ ले गए। लेकिन इतनी बात पक्की है कि पढ़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों से आने। पढ़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों से आने। जो हमने देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। कुछ प्रश्नों के उत्तर वो अपने साथ ले गए। 20 सवालों में वो प्रश्न नहीं आते थे। ये सच है कि यात्रा एक शिक्षक की यात्रा थी, एक अध्यात्म और ज्योतिष पथ के पथिक की यात्रा थी। और इस यात्रा ने दिया ही दिया। इस यात्रा में इस यात्री का हाथ देने वालों में था, लेने वालों में नहीं था। न जाने कितने घरों में चिराग जलाकर इन्होंने रोशनी करी। कहते थे कि कोई बज़्म हो, कोई इल्म हो, ये शऊर अपना कदीम है। जहां रोशनी की कमी दिखे, चिराग एक जला ही दो। शिक्षा के चिराग जलाते रहे, लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते रहे, और साथ ही साथ हमें भी कहते रहे कि इससे पहले कि आपका अंत आए, आप बेअंत को पहचान लेना। इससे पहले कि लोग आपकी तस्वीर पर माला चढ़ाएं, अच्छा है आप उसके नाम की माला पकड़ लो। इससे पहले कि लोग अपने मरने की बात करें, आप उस प्रभु का स्मरण कर लेना। और अपनी तैयारी के साथ वो समझाए रोहित को पहले ही कि इससे पहले कि तुम मेरी अस्थि सजाओ, मेरी अर्थी सजाओ, अर्थी सजने से पहले जीवन के अर्थ समझ लेना। इससे पहले कि कोई चिता को अग्नि दे, तुम चेतना जगा लेना। इससे पहले कि तुम्हारी अस्थियां चुनी जाएं, तो परमात्मा के प्रति आस्था स्थापित कर लेना। इससे पहले कि एक दिन तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा हो, तुम इतने अच्छे कर्म कर जाना कि तुम्हारी आत्मा शांति से ही यहां से जाए। ये सच है। ऐसी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो शांति है क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग जो राम नाम सत्य कर रहे होते हैं, वो उस प्राणी के लिए नहीं कर रहे होते जो जा चुका है, वो हमारे लिए कर रहे होते हैं कि हम समझ जाएं कि सिर्फ राम का नाम ही सत्य है। मेरा एसोसिएशन प्रोफेसर राजपाल ठंड जी से, मैडम से बहुत पुराना, लगभग 35 साल पहले मैं उनके कांटेक्ट में आया, और उनका जो स्नेह है मुझे प्राप्त हुआ, उनकी जो गाइडेंस मिली मेरे को, उससे मैं हर कदम आगे बढ़ता गया। और वो एसोसिएशन जो है मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरे से
वो कितना प्यार करते थे, उसकी एक दो मिसालें मैं आपको देना चाहता हूँ। कितना मेरे जैसे मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया, लेकिन उनका जो प्यार था, कितना प्यार था उनका मेरे प्रति। मैं जब भी आता था उनसे मिलता था। इस बार भी मैं घर आया हुआ था एक्चुअली, उन्होंने मुझे बुला लिया कि रघुवन आ जाओ। मैं घर आया हुआ तो मैंने सोचा कि भाई सेकंड को मुझे जाना, फर्स्ट या सेकंड को मैं सर को मिलूंगा, कुछ काम से आया था। उससे पहले ही ये दुखद समाचार जो है प्राप्त हुआ, तो मैंने सेकंड को जाना था। मैंने कहा कि अपना 4 तारीख को जाऊंगा, सर को जो है अपना आखिरी सलाम करे बिना मैं जा नहीं सकता है। प्रेम इतना था उनका कि जब भी मैं आता था, जब भी मैं जितनी बार भी आया घर, तो मैं उनसे मिलता था। और मैडम की इस अवस्था के बावजूद भी कि वो काफी क्रिटिकली इल रहती थी, उनकी ये प्रयास रहता था कि मैं आपके साथ बाहर जाऊं। जब भी मैं गया तो जब वो चलो बाहर चलते हैं लंच के लिए, मैं कहता सर मैडम इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, तो आप जो है कहा नहीं, मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ जो है जाऊं। कई बार मेरे साथ वो गए भी, इस अवस्था में भी इतना प्यार करते थे मेरे को। तो ये मेरे लिए जो है बहुत ही बड़ा नुकसान है। सेकेंड थिंग उनका था कि ही हैड ए डिजायर कि मैं जो है दक्षिणेश्वर मंदिर है कलकत्ते के पास में, कई लोगों को जानकारी, तो इतना अध्यात्म में वो इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने मेरे को कई बार कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूँ, कुछ दिन वहां रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर जो है आप आइए, यू आर ऑलवेज वेलकम, आपका स्वागत है। आप जो आप आएंगे तो हमको भी थोड़े दिन आपके साथ बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर वही वो कहते थे भाई मैडम को कैसे मैं छोड़ के जा सकता हूँ जो है। तो इतना उनका जो प्रेम था मैडम के प्रति, इतनी जो डेडिकेशन, ये जो है एक मिसाल है अपने आप में। उसके अलावा भी जब भी बहुत सारे विषय होते थे जो कि आप अपने जो है बेटे या मोस्ट इंटीमेट लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहते हैं, आपके दिल में क्या भाव जागृत हो रहे हैं, कई इश्यूज रहे थे जिसके बारे में आप अपने दिल की बात करना चाहते हैं, तो वो सब विषय भी कभी कभार जो है मेरे से बात कर लेते थे कि रघुवन ये इश्यूज हैं, ये चीजें हैं, तो कैसे इनके बारे में जो है हम जो है विचार करें और कैसे इसके बारे में आगे करें। तो उनका प्रेम जो है हर जगह मेरे को मिला। उसके बाद मेरी शादी पे भी आए, सब जगह जो है जहाँ जहाँ भी। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। और उनकी जो प्रेरणा थी, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्जाम के लिए, तब भी वो कहते भाई आपको सफलता मिलेगी ही, आप मेहनत करोगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो उनका विश्वास, जो विश्वास है, उनका जो स्नेह है, जो प्रेम उनका था, वो मेरे हमेशा ही मेरा मार्गदर्शन किया। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ उनको और मैडम को जो है वैकुंठ धाम प्रदान करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो शोक संतप्त परिवार है उन सभी को भी जो है अपनी संवेदनाएं देता हूँ कि इस जो बड़ा नुकसान हुआ, जो बड़ी क्षति हुई है, वो जो है उनको सहन करने की भगवान उनको शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को नमस्कार। कण कण में राम समाया, कण कण में राम समाया, कहले ज्ञान सभी से तू, कहले ज्ञान सभी से